what are your plans when you complete? What kind of subjects are you studying? You are from all streams? You have people from humanities also over here? No. Commerce and sciences. Okay. So how you plan the things like after your class 12th? 12th वाले कौन है बच्चे? Okay. So how do you wish to plan the things ahead? Because you are just going to complete class 12. So what next? क्या करना चाहोगे इसके बाद एकदम? Banking. Okay. आप क्या करना चाहेंगे? You want to be a doctor. So you will plan NEET. Okay. And आप लोग? IIT. You would like to do engineering. Okay. And class 11th के जो students हैं वो भी कुछ बताएं. What would you like to do? CA. Okay. CA, engineering, medical, right? BA, BCom. इनके अलावा और भी careers होते हैं. किसी का interest इन academic careers के अलावा भी है कुछ? कोई सिंगर बनना चाहता है? कोई डिजाइनर बनना चाहता है? Designer. Someone who is good in designing. I want to do fashion designing. You want to do fashion designing. Okay. So when you want to do fashion designing, what are the good institutions for that? I will do from Delhi. Which college? Probably Sochari. I will tell you. To do design, there are colleges like NIFT, National Institute of Fashion Technology, or National Institute of Design, NID. These are two top colleges. उसके अलावा बहुत सारे और भी colleges हैं, right, that we can discuss. But just to give you some insight, NIFT and NID, remember these two colleges if you want to pursue design. और कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है? फिल्म्स बनाते हैं, बताओ आप क्या करना चाहते हैं? लॉयर. You want to be a lawyer. लॉ करने के लिए you have to crack examination called CLAT, right? If you clear this examination, you can do wonders because you have national law universities. आप लोग भी आ जाओ. You can stand at the back side. You can stand this side. You can stand this side. Some of you can go this side. ऐसे आ जाओ आप लोग. Okay. Be comfortable. Be comfortable. We are just interacting. Okay. This is not a session. We are just interacting. So you will have some idea about what can be done with your class 10th, 11th and 12th afterwards that. Okay. So to do law, you have to clear examination called CLAT, Common Law Admission Test. But lawyer बनने के लिए क्या क्या skills होनी चाहिए आपके अंदर? What kind of skills you should have to be a lawyer? एक अच्छा lawyer कैसी skills होती हैं उसके पास? A person should have good communication. That is the foremost thing, right? And more importantly, a person should have good reading and writing skills. A person who is well read, जो अच्छा जिसको reading करना पसंद है, because in law as a career you have to have lot of reading, and that reading will not be just story books. That reading will be abstract. You have to draw things from philosophy also. You have to draw things from political side also. You have to draw things from historical backgrounds also. So a person who is well read can go for design as a law as a career. And as you said, designing, for design you need to be very creative.
someone who has the ability to solve problems in more creative way. You can troubleshoot problems. कोई भी प्रॉब्लम है उसको अलग क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करना. वो जरूरी नहीं है कि स्केचिंग ही अच्छी होनी चाहिए टू बी अ डिजाइनर. यू शुड बी क्रिएटिव इन योर थॉट प्रोसेस. अब जैसे सिंपल है, आप रोड क्रॉस करते हैं, राइट? तो वहां पर एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है. दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन. That it is communicated through design. You don't have to utter a single word to stop. Only that zebra crossing says that you should be cautious because people, those who are pedestrians, they might cross it. So you have to stop before that. So simple सा एक zebra crossing बनाया, वो एक communication design का एक example बन गया. So वो क्या है, एक problem को solve करा with the help of design, right? एंड जेब्रा ही क्यों बनाया, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई? बिकॉज वो दूर से विजिबल हो जाता है एंड यू हैव टू स्टॉप. सो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आज के टाइम क्या है, हम जो भी प्रोग्राम्स चूज करें अपने लिए, वी शुड चूज दोज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट हैव द एबिलिटी टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल, जैसे कि ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, आप लॉ, मीडिया, और ये जरूरी नहीं है दैट अभी क्या है, क्रॉस फंक्शनल इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग चल रही है. उसका मतलब ये होता है कि अ PCM स्टूडेंट कैन ऑल्सो परस्यू करियर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, एंड अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हु मे बी अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स can also do a BTech program. There are such programs also available now. So it is not limited to your streams alone. You can actually cross your streams based on your interest, but you should have done some work into it. अगर आपको एक suitable profile बनाना है, एक अच्छे कोर्स को पिक करने के लिए, you should do lot of projects in your student life. उस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि आप जिस तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं. एंड व्हेन यू डू दोज प्रोजेक्ट्स, आपको क्या फायदा होता है प्रोजेक्ट्स करने से? आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं. जो स्किल्स का मतलब यू हैव द एबिलिटी टू डू सम वर्क. एक काम को करने की एबिलिटी है आपके अंदर. स्किल कैन बी सिंपल कुकिंग ऑल्सो. Skill can be accounting also. Skill can be a technical innovation also. कोई नया इनोवेशन आपने करा, वो भी स्किल है. एक मैकेनिकल स्किल भी हो सकती है, कोडिंग स्किल्स भी हो सकती है, क्रिएटिव स्किल्स भी हो सकती है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स भी हो सकती हैं. ये सारी स्किल्स के ऊपर अब टाइम है इनके ऊपर काम करने का. People not only look at your marks. Marks are important, but they also look at what kind of profile you have, what kind of work you have done, what kind of work you know, क्या काम आता है आपको. So जितना आप अपना practical experience बढ़ाएंगे along with studies, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा to find out what kind of course you should do, to find out what kind of colleges match that kind of course that you want to do. तो ये सारी चीजें will be aligned with your own interests. इंटरेस्ट की जब बात होती है तो कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज आवर इंटरेस्ट? नॉर्मली क्या होता है, किसी काम को हम करते हैं तो कंसिस्टेंटली कितना कर पाते हैं, इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करता है. इफ वी आर रेगुलरली डूइंग सम वर्क and we have long interest, we have a track record of let's say 4 to 5 years, 4-5 साल हमने एक काम को शुरू करा and we have been continuously doing and we have some expertise into it. That proves that we have some interest into it. And what is your aptitude? That is your natural ability. अब कई लोग यहाँ पर मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है,
किसी की साइंस अच्छी है, मैथ्स अच्छा नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट। एक एक पर्सन हमारे में सब अलग अलग कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड हर स्टूडेंट का अपना एक इंडिविजुअल एप्टीट्यूड होता है। दैट इज योर नेचुरल एबिलिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना आप क्लोज अपनी नेचुरल एबिलिटी के जाएंगे, करियर उतना ही स्ट्रांग आप चूज कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एबिलिटी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा करियर आप चूज कर पाएंगे। सो आपको ये पता होता है कि कौन से एरियाज में आप बेटर हैं एंड कौन से एरियाज में आप बेटर नहीं कर रहे। सो बेस्ड अपॉन योर चॉइस कि भाई ठीक है, मैं इन सब्जेक्ट्स में अच्छा करता आ रहा हूं शुरू से, तो अपने को स्ट्रेंथ पे ही जाना चाहिए। करियर के मामले में कभी भी अपनी वीकनेस को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसी के ऊपर अपना करियर बिल्ड करूं। हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के, सारे सब्जेक्ट्स में हम सारे अच्छे नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो सभी में अच्छे होते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स में आपके पास एक एक्सेलिंग फैक्टर है, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ें जो आपकी स्ट्रेंथ है। सो स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपना कोर्स चूज करिए, राइट? एंड जितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, आपको उतना ही बेटर कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। सो हमेशा आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपका जो नेचुरल एबिलिटी है वो क्या है, जिसको आप बहुत कम समय देके उन सब्जेक्ट्स को या उन एरियाज को बहुत कम टाइम देके भी आप एक्सेल कर पाते हो। तो जितना एक्सेल आप कम समय में कर पाते हो, दैट इज योर बिकॉज ऑफ नेचुरल एबिलिटी। सो कोशिश करिए कि उसको आगे लेकर चलिए, उसको बढ़ाइए, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। ओके, आई वुड लाइक टू टेक सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आप लोग अपने क्या थॉट रखते हैं? सम ऑफ यू दोज हु वुड लाइक टू, यस, कुछ लोग, यू कैन गो टू द डेस्क। कुछ बच्चे आ जाओ पहले, अभी बाकी लोग आगे आप बैठ सकते हैं। कुछ लोग आ जाओ, 12 बच्चे हैं 12 के, वो आ जाओ बस। आप उनको 12 को, ये तो उनको तो आप लोग बच्चों, आप कम एंड सिट फॉर सम टाइम। हाँ हाँ, उनका इतना स्टार्ट करा दो। I would like to take some of your individual questions about your career. This is the time when I can discuss these things with you. You are also free and we can discuss few things. Yes. Okay. As I said, strength कोई काम करने की एबिलिटी से पता चलती है। अगर हम ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, सपोज मैथ्स को लेके, सपोज एक एग्जांपल है, you have maths as a subject and let's say you want to know whether it is your strength or not. सिंपल सी बात है, अपना सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए, ट्यूशंस हटा दीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। ये देखिए कि आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी से आप कितना उस सब्जेक्ट को डील कर पाते हो। बिकॉज रियल लाइफ में नोबडी इज गोइंग टू बी विद यू, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन। रियल लाइफ में ट्यूशंस नहीं होती, राइट? रियल लाइफ में इट इज यू ओनली हु हैज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ऐसे एरियाज जो आप खुद कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिपेंडेंस यू फील कॉन्फिडेंट। सो दैट कॉन्फिडेंस व्हेन इट कम्स इन डूइंग सम टास्क, इन डूइंग सम वर्क, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो, राइट, दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। यू कैन आइडेंटिफाई दैट। एंड फिर भी कंफ्यूजन हो मल्टीपल चीजों में, so you can come and discuss with us. We can still, streamline that for you. Okay, what's your good name? Shirish. Okay. And someone else who would like to ask?
Someone else who would like to ask a question? Yes. Anyone who has a question, you have the ability to ask. At this moment you can ask. How can we improve our weaknesses? Okay. See, this is also a very good question because every person has some imperfections, है ना? तो imperfections हमेशा रहते हैं, कोई भी perfect life में कभी भी नहीं हो सकता है, right? So weaknesses को improve करने का तरीका step by step होता है. आपको कोई particular area ऐसा लगता है that maybe you are not very confident, तो उसमें जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, एंड इफ यू कैन हैव समवन हु कैन बी अ मेंटोर टू यू इन दैट फील्ड. सपोज कुकिंग में इतने अच्छे नहीं हो एंड लेट्स से योर मॉम स्टार्ट्स गाइडिंग यू हाउ टू डू दैट, आप देखेंगे कि आपकी वीकनेस जो है इन कुकिंग दैट हैज गॉन जस्ट विथ सम प्रैक्टिस सेशंस. So it is all a matter of लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू कम ऑन आवर स्ट्रेंथ्स ओनली. कोई भी अगर करियर के बारे में बात करेंगे, सो वी हैव टू कम टू आवर स्ट्रेंथ ओनली, वी कांट वर्क ऑन आवर वीकनेसेस. कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बियॉन्ड होती है. अब मैथ्स से कई बार नहीं होता मैथ्स किसी से, तो जबरदस्ती नहीं है उसको कि 10th के बाद मैथ्स करना ही करना है, क्योंकि करियर मैथ्स के साथ बनते हैं ऐसा नहीं है. मैथ्स के बिना भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ करियर्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. तो ये जरूरी नहीं होता, आप अपनी स्ट्रेंथ पर ही चलें हमेशा. वीकनेसेस को इग्नोर करके चल सकते हैं, बट वीकनेसेस होती जरूर है. यू कांट डू अवे विद देम कंप्लीटली. आपके कोई क्वेश्चंस, किसी के कोई क्वेश्चंस? या time management is very crucial, especially at all stages. Being in student life, आप लोग आपका 9 से 3 जो टाइम होता है, मॉर्निंग 9 to और 8 to 3 is already managed by school, right? So most of the work that you get is all you have to reach the school and they will manage time for you because सबके periods होते हैं, अलग अलग time table होते हैं and you have to follow that. जैसे ही हम 3 बजे के बाद घर पहुंचते हैं, वी वॉन्ट टू रिलैक्स, राइट? सो टाइम मैनेजमेंट फॉर एटलीस्ट 1 hour यू शुड गिव योरसेल्फ अ रिलैक्स्ड टाइम वेयर आप अभी स्कूल से पढ़ के आए हो, ये नहीं कि एकदम. अभी क्या होता है, कई पेरेंट्स को मैंने देखा है खास तौर से कि दे आर वेरी कॉन्शियस कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठे, दे शुड डू कीप ऑन डूइंग समथिंग. तो वो क्या होता है, जैसे 3 बजे स्कूल से आए, 3 बजे से 6 बजे तक आपकी ट्यूशंस लग गई. सो दैट इज रॉन्ग. कोशिश ये करिए, टाइम मैनेजमेंट तब होगा, उसकी वैल्यू भी तब होगी जब आप चीजों को खुद करना शुरू करेंगे इंडिपेंडेंटली. आपको अपना एस्टिमेट पता होना चाहिए कि आप एक काम को कितने टाइम में कर सकते हैं, और जब तक खुद नहीं करेंगे इस बात का अंदाजा कभी लगेगा ही नहीं दैट व्हाट टाइम आई एम स्पेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, because we are dependent on someone. So time management हो ही नहीं रहे. एंड एग्जाम टाइम में हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ओवर द पीरियड पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस करनी चाहिए. अगर आप अपने क्लासेस अच्छे से कर रहे हो, अपने लेक्चर्स ठीक से, अपना वर्क ठीक से कर पा रहे हो, डिसिप्लिन से कर पा रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. इट इज अ हैबिट मोर ओवर. But we can discuss this thing individually, you know, there are a lot of things that I can ask you on this. Something else that you would like to know? Someone who would like to know? This side? Have we interacted before? I had come to your school also. We had an interaction. Some of you were there? Okay. I haven't come yet. I would be coming maybe in the coming days. So we'll have a thorough interaction with you guys. Right? I have a YouTube channel by the name of Love Jain Career Counselor. So you can always find useful information if you want to write back to me.
You can watch the videos and you may comment few things that if you want to know, so I can get back to you. And in case you want individual personal counseling, you can come with your parents separately, individually, so that we can discuss each case separately, because all of you are different. I can't give you general, I would say, a career to all. We have to have a difference as far as each one of you is concerned. So each one of you has a different list altogether that we need to prepare for what kind of courses and colleges probably what we can pick up. So how's your preparation going on, by the way, in terms of some kind of competitions that you are planning? So what kind of competitions some of you are planning? नीट नीट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मैं ये जरूर सबके साथ करना चाहूंगा, आप भी बताइए मुझे। नीट में जब जाते हैं क्लास 11 12th में हमारे पास 10th तक मैथ्स होती है एंड 11th में हम मैथ्स छोड़ देते हैं बिकॉज वी वांट टू गो फॉर नीट एंड वी गो फॉर पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बट बाद में रियलाइज होता है फिजिक्स इज नो लेस देन मैथ्स, तो मैथ्स छोड़ के भी ऐसा लगता नहीं कि मैथ्स छोड़िए। So someone who is good with maths has better chances to clear NEET rather than a person who is weak in maths. A person who would be weak in maths would also be weak in physics. And अगर physics भी हल्का सा भी down जा रहा है, so it will have issues in NEET. And NEET you need to score 600 plus to get an entry into GMC. So somehow we have to प्लान दैट वे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम लोग मैथ्स छोड़ के आते हैं लेकिन फंस जाते हैं फिजिक्स में। बायो में किसी को परेशानी नहीं होती, एम आई राइट? सो ऑल्टरनेट करियर्स पता है किसी को? बायो में ऑल्टरनेट करियर्स क्या होते हैं? अच्छा, गोइंग फॉर वेटनरी, वंडरफुल। सो वेटनरी इज एन एक्सीलेंट आई वुड से prospect in case you are an animal lover. Wonderful. Wonderful, wonderful. So you have a profile for that and you are going for that. That is what I like. Means आप काम भी वैसा करते हैं और फिर उसी तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं, उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। ऐसा ही कोशिश करनी चाहिए सभी को। और बताइए आप लोग क्या और क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? यूपीएससी इस स्टेज पर इट इज टू अर्ली टू प्लान। एक बात मैं यहां सभी को बताना चाहूंगा, जो लोग सिविल सर्विसेज प्लान कर रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट, आप भी थोड़ा इधर हो जाओ और इधर हो जाओ, किसी का इंटरेस्ट अगर सिविल सर्विसेज में है, एक तो बहुत अनसर्टेन होता है, यू नेवर नो कि आप सिविल सर्विसेज जब टाइम आएगा आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यू नेवर नो दैट, इट इज नॉट सर्टेन, यू मे और यू मे नॉट। सो आई ऑलवेज एडवाइज पीपल, दोज हु आर प्लानिंग क्लास 12 में, they are planning that they want to be civil servants, the first thing that you should do is try to become something first, become some professional। चाहे आपका कोई और इंटरेस्ट हो, आप मैनेजर बन जाएं, चाहे आप फाइनेंस में चले जाएं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, चाहे मीडिया प्रोफेशनल बन जाएं, चाहे लॉयर बन जाएं, बट पहले कुछ बन जाइए। वंस यू आर through with some kind of career, you become financially independent। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद सिविल सर्विसेज को ट्राई कर लो, there is no problem। but without being financially independent and we are stuck with one option only, it can create problems at a later stage। वो जो एज फैक्टर होता है ना, वो निकल जाएगा और यूपीएससी भी नहीं होगा कई बार। सो ये इस बात के लिए कॉशियस रहना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। और क्या चॉइसेस आप लोग प्लान कर रहे हैं?
Okay. SAT for international, you are talking about SAT. So scholastic aptitude test is basically for those जो international जाना चाहते हैं. तो SAT के थ्रू आप जितने भी इंटरनेशनल एग्जाम्स यूएस में जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं, SAT इज जस्ट वन पार्ट. SAT के अलावा भी उसमें बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं. SAT के अलावा उसमें आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, आपके एकेडमिक्स 9th 10th 11th 12th, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th आपके एकेडमिक्स देखे जाते हैं इंटरनेशनल जाने के लिए. SAT इज अ टेस्ट ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश. सो अगर आप मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं तो SAT इज व्हाट यू कैन appear for and get into some of the topmost BTech colleges or any other colleges that you want to achieve. And let me tell you, we also prepare you for these entrance exams. SAT is what we specialize in. I do specialize in study abroad. So if you have any queries pertaining to the kind of applications, pertaining to the kind of colleges that you want to pick up, based on your profile, I can guide you individually. So like if a person from India has cleared IIT and he's doing his computer science BTech, and a person who has done like BTech from foreign country and has a work experience of like 1 year in the same place, and he's coming back to India, then what would be the package difference in like both of them? See, a person, you mean to say the difference between BTech International and a person who is doing BTech from here, and even the prospect of jobs. So अगर यहाँ से करते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो. आप IIT से भी कर सकते हो अगर आप JEE क्वालिफाई करके जाते हो एडवांस वगैरह. एंड अगर IIT में IIT के जैसे यहाँ पर भी कॉलेजेस हैं इंडिया में अभी, you have colleges like Plaksha. This is a wonderful college for, and BITS Pilani is there, Plaksha is there, and you have more VITs there. You have Christ, you have some very big names into BTech. So you can even go for those kinds of top end colleges. एंड फायदा क्या होता है अगर आप यहाँ से करते हो, आपका जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस, राइट. यहाँ पर एवरेज 4 to 5 लाख पर ईयर का एक्सपेंस होता है बीटेक में, राइट. एंड इंटरनेशनल अगर आप चले जाते हैं सो दैट सेम एक्सपेंस इज 25 लाख पर ईयर. सो इट विल क्रॉस 1 CR you if you want to have international education. But the catch is वहां पर स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, बट स्कॉलरशिप्स उनको मिलते हैं जिनका प्रोफाइल बहुत एकेडमिक बहुत अच्छा है. जैसे 9th से लेके 12th तक आपका परसेंटेज 90% के ऊपर है एंड आपने अच्छा अपने फील्ड में काम भी अच्छा करा हुआ होता है. यू हैव डन सम गुड वर्क इन बीटेक फील्ड, इन टेक्निकल फील्ड, कुछ अच्छा इनोवेशन के ऊपर काम करा हुआ है, टेक्निकल काम करा हुआ है. सो उन लोगों को स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड दूसरी बात, थोड़ा कम्युनिटी वर्क भी होना चाहिए. जो आपने काम करा उससे दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो आपका काम है उसने दूसरों की लाइफ को कैसे चेंज करा. इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस इन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन इट विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर स्कॉलरशिप्स. तो स्कॉलरशिप्स के चांसेस होते हैं. एंड अगर आप वहां से यहां आ जाते हो, सपोज 1 साल वहां जॉब करा फिर वापस इंडिया आ जाते हो, तो आई थिंक 1 साल कम है. वहां पर कम से कम 2-3 साल आपको फिर जॉब्स करनी चाहिए और फिर आप यहां आ जाएंगे तो पैकेज मैच हो जाएगा. हाँ, आपके पैकेजेस जो वहां है वो यहाँ पर भी मैच हो जाएंगे. अब इंडिया इज एक्चुअली बिकमिंग अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, तो बिजनेस वाइज यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है. सो प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, हर करियर में प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है. नहीं, एमटेक से फर्क नहीं पड़ता, आपके काम से फर्क पड़ता है. आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो. जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के ऊपर काम ज्यादा हो रहा है, डेटा साइंसेस के ऊपर काम ज्यादा हो रहा है, तो उनके ऊपर एनालिटिक्स पे काम ज्यादा हो रहा है. तो उन एरियाज में अगर आप काम कर रहे हो, सो देन रोबोटिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो रहा है.
See, if a person has good knowledge about data sciences, it will definitely have a good impact on your package. Yes. Because जितनी कंपनीज ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एनालिटिक्स के लिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये हायर करती है, अमेजॉन, ये सब कंपनीज हायर करती हैं. इसके अलावा कंसल्टिंग फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, केपीएमजी, बाइन, राइट, बीसीजी, मैकिन्जी, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स को हायर करती हैं जिनके पास ये स्किल्स हैं. और स्किल्स अगर लेनी है तो यू शुड ट्राई टू गेट इनटू सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हमेशा. ठीक है. सो यू कैन नोट डाउन माय नंबर इफ यू वुड लाइक टू हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल, आई वुड से, क्वेश्चंस. माय नंबर इज 98376 8820, and my name is Love Jain. And you can also watch my YouTube channel, right? Love Jain Career Counselor. You can search over the internet. You can subscribe. So you will have all kind of informations about careers. You can remain in touch with me. And if you want any kind of preparations to be done, any kind of help you need, most welcome. You can always ask that. Okay? ठीक है? All right. Thank you. Bye, please. Bye. Bye. Yeah, 98376 8820. Okay. All right. Now you can please go. Step by step, one by one, you can go see that you have the chance to interact with those universities. You can do that. All right. You can be relaxed, right? You can be relaxed. Okay.